Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the fourth part of the fifth chapter of class 11 chemistry, states of matter. In this video we will discuss kinetic theory of gases. So let's begin. So what is KTOG? The main assumptions made in this theory are a gas consists of large number of small particles called molecules. हर गैस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको molecules कहते हैं. The volume occupied by gas molecules is negligible as compared to the total volume of the gas. गैस का जो टोटल वॉल्यूम है उसके कंपेरिजन में गैस मॉलिक्यूल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वो नेग्लिजिबल है. There is continuous rapid random motion of gas molecules. The molecules collide with each other and with the walls of the container. जो molecules हैं गैसेस के वो कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन में रहते हैं और molecules आपस में और molecule कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करते रहते हैं. The molecules are perfect elastic bodies and there is no loss of kinetic energy during the collision. Collision के टाइम पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है because they are perfectly elastic bodies. There are no attractive forces between the gaseous molecules. गैस molecules के बीच में कोई किसी तरह की attractive forces काम नहीं करती हैं. The pressure exerted by the gas is due to the bombardment of the gas molecules against the walls of the container. जो गैस अपने कंटेनर के चारों तरफ प्रेशर लगाती है दैट इज़ एक्चुअली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स. जो मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली वॉल्स के साथ उन्हीं की वजह से गैस जो है वो अपने कंटेनर के वॉल्स पे प्रेशर लगाती है. Next, the different molecules possess different velocities and hence different energies. The average kinetic energy of a gas is proportional to its absolute temperature. Average kinetic energy जो है वो absolute temperature के proportional है और क्योंकि हर molecule की अपनी खुद की velocity होती है और अपनी खुद की energy होती है इसलिए average लिख सकते हैं which is proportional to absolute temperature. Now, kinetic gas equation ये क्या है कि E equals to 3/2 times of RT, that is average kinetic energy per molecule equals to 3/2 times of KT. Here K is Boltzmann's constant, its gas constant, it is gas constant per molecule. gas constant जो होता है उसको per molecule कर लें तो उसको बोलते हैं Boltzmann constant. And K equals to R times of Na. Na होगा तो number, R is gas constant, so it's 1.38 into the power of 0.73 joule Kelvin inverse mole inverse value of Boltzmann constant K. From the above postulate, the kinetic gas equation is derived as PV equals to 1/3 mn u square, 1/3 mn u square, where u is root mean square velocity or root 3 RT upon m. u की जो वैल्यू है that is root 3 RT upon m and PV equals to 1/3 mn times of u square. That is kinetic equation of gas. Next, velocities of gas molecule. Gas molecules की velocity कितने टाइप की होती है और निकालते कैसे हैं. तो पहला आता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अल्फा. It is the velocity possessed by maximum fraction of the gas molecules at a particular temperature. किसी particular temperature में एक गैस के मॉलिक्यूल्स में से मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. अल्फा इक्वल्स टू रूट 2 RT अपॉन m. एवरेज क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज ऑफ द डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स. सारे मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है उसका जो एवरेज निकलेगा दैट इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल विच इज गिवन बाय रूट 8 RT अपॉन पाई m. Next, root mean square velocity, URMS, root mean square. It is the square root of the mean of the square of the different velocities of the molecules. So RMS square mean root. उल्टा करते हैं, पहले स्क्वायर करेंगे फिर मीन निकालेंगे फिर उसका रूट लेंगे. सो U is given by n1c1 square plus n2c2 square plus n3c3 square so on upon n1 plus n2 plus n3 complete under root. So U equals to under root of 3 RT upon m is also equal to under root 3 PV upon m is also equal to under root 3 P upon D, which is in terms of density. And from here alpha and V square, which is average velocity, nu bar, or which is U, which is root mean square. इनका आपस में रेशियो होता है 1:1.128:1.224.
That's the ratio between most probable velocity, average velocity and root mean square velocity. नेक्स्ट, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. तो आइडियल गैस, रियल गैस दो तरीके होती हैं. रियल गैसेस में आइडियल गैस से डेविएशन होता है. किस तरीके से होता है? एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर द गैसेस डेविएट कंसिडरेबली फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. उल्टा हमने पढ़ा था, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैसेस बिहेव आइडियली. यहाँ पे हम उल्टा कह रहे हैं, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर जो डेविएशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, कंसिडरेबली डेविएट कर जाती हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. डेविएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z. और डेविएशन कितना हुआ उसको हम कंसिडर करेंगे, उसकी बात एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विच इज गिवन बाय Z इक्वल्स टू PV अपॉन nRT. In case of ideal gas, PV is equal to nRT, so Z equals to 1. In case of real gas, PV is not equals to nRT and Z is not equal to 1. Negative deviation कब होगा? In such case, Z is less than 1, gas is more compressible, and positive deviation for such case Z is more than 1 and gas is less compressible. तो deviation किन factors पे depend करता है? Nature of the gas. In general, most easily liquefiable and highly soluble gases show large deviation. जो जल्दी लिक्विफाई हो जाती हैं और ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं, ऐसी गैसेस जो हैं वो लार्ज डेविएशन शो करती हैं फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है? द डेविएशन इज मोर एट हाई प्रेशर. CO2 एंड N2 शो नेगेटिव डेविएशन एट लो प्रेशर एंड पॉजिटिव डेविएशन एट हाई प्रेशर. प्रेशर बढ़ने पर डेविएशन ज़्यादा होता है. CO2 और N2 जो हैं वो लो प्रेशर पे शो करती है नेगेटिव डेविएशन और हाई पे शो करती हैं पॉजिटिव डेविएशन. टेम्परेचर पे द डेविएशन इज मोर एट लो टेम्परेचर एंड H2 एंड He ऑलवेज शो पॉजिटिव डेविएशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. लो टेम्परेचर पे जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही 0 डिग्री पे पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं. अब डेविएशन होता क्यों है, कॉज क्या है इसका? इट इज़ ड्यू टू टू faulty assumptions of kinetic theory of gases, particularly not valid at high pressure and low temperature. दो assumptions KTOG में से लिए गए जिनमें fault है, जो कि applicable नहीं है at high pressure and low temperature in particular. कौन से? The volume occupied by the gas molecules is negligible as compared to the total volume of the gas. जो हमने postulate पढ़ा कि volume occupied by the gas molecules is negligible as compared to the total volume of the gas. This is a faulty one, and the second is there is no attractive force between the gas molecules. इसमें भी फॉल्ट है, यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रैक्टिकली अट्रैक्शन होता है और जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नॉट नेग्लिजिबल. इसकी वजह से डेविएशन शो होता है. नेक्स्ट कम्स वेंटर वाल्व इक्वेशन. ये क्या है? आफ्टर वॉल्यूम एंड प्रेशर करेक्शन वेंटर वाल्व obtained the following equation for n moles of a gas. n moles of a gas के लिए जो वॉल्यूम और प्रेशर में फॉल्ट है उसका करेक्शन निकालने के बाद एक इक्वेशन निकाली वेंटर वाल ने, विच वाज गिवन बाय P प्लस n स्क्वायर अल्फा अपॉन V स्क्वायर V माइनस NP इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ RT, वेयर P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इक्वल्स टू RT, जो कि वो RT के बराबर है. यहाँ पे B क्या है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. बी की जो वैल्यू है वो गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम की बात कर रहा है, विच इज़ 4 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम जो हम लेके चल रहे थे. ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स. तो जो चीज़ हमने कंसिडर नहीं की थी इन द एक्चुअल KTOG, वो फैक्टर्स यहाँ पे कंसिडर किए गए, बोथ वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिनको A और B से शो किया गया. The greater the value of A, the greater the strength of the van der Waals forces and greater is the ease with which the gas can be liquefied. A की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, E की वैल्यू ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा, जितनी ज़्यादा होगी अट्रैक्टिव फोर्स उतनी आसानी से जो गैस है उसको लिक्विफाई कर सकते हैं. सो P इक्वल्स टू n स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर और A इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ ATM लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2. And volume correction is given by B equals to NB or B equals to V upon N, which is liter per mole. अब इस इक्वेशन में लिमिटेशन क्या है? There is a specific range of temperature and pressure to apply the equation. It deviates at very high pressure and very low temperature.
ये इक्वेशन जो गिवन दी है वंडरवाल ने, इसको अप्लाई करने के लिए भी एक स्पेसिफिक रेंज है टेम्परेचर प्रेशर का जहाँ पर ये इक्वेशन अप्लाई हो सकती है, और ये भी डिवेट कर जाती है एट वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी लो टेम्परेचर। तो दोस्तों यही पर चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम आया, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ बहुत जल्द।